ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 94th ਮੌਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਇਜ਼ ਏਸ਼ੀਆਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮ ਹੈਵਿੰਗ ਹਾਈਟ ਆਫ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 210 ਮੀਟਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਫ ਜਿਹਾ ਫਿਗਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। 210 ਮੀਟਰ, 225 ਮੀਟਰ, 310 ਜਾਂ 326। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 225 ਮੀਟਰ। आंसर आया अपना 225.56। नेक्स्ट चलते हैं। मदन लाल ढींगरा वेंट टू इंग्लैंड इन 1906 टू स्टडी। मदन लाल ढींगरा जिन्हों के आप मॉडर्न हिस्टरी के जिक्र करते हैं, इन्होंने करजन वाइली मारिया सी। यह जोड़ा है 1906 के इंग्लैंड के किस चीज़ की स्टडी कर गए। तो यह आंसर है जी अपना ऑप्शन नंबर ए इंजीनियरिंग। नैक्सट चलते हैं। हू वॉज द फर्स्ट सैक्रटरी जनरल ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी के पहले ਸਕੱਤਰ कौन ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਫਾਊਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਸਟ ਪੈਸੀਫਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੂ ਵਰ ਦ ਟੂ ਡਾਕਟਰਸ ਹੂਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਲੈਡ ਏ ਕਰਾਊਡ ਟੂਗੈਦਰ ਐਟ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦ ਪਲੇਨਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਰ ਮੇਡ ਆਫ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟ ਸੋਇਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਡੀ ਸੋਇਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਨਸ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਡਾਈਡ ਔਨ ਡੈਸ਼ 1928। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਪੀ ਸੌਂਡਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵਾਲਾ ਡੇਟ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਟੂਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਕਦੋਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ, ਬਟ 1929 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਵਰ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਚਿਨਾਬ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕੇਟਿਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾਰਥ, ਸਾਊਥ ਤੇ ਵੈਸਟ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬਸ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਇਜ਼। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਚੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਤਿਆਬਾਦ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜਾਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਐਟ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਿਡ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਦ ਫਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟ ਹੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਿਜ਼ ਲੌਂਗਿੰਗ ਫॉर यूनियन विद द डिवाइन। मतलब कि पंजाब दे किहड़े राइटर ने
ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡਡ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਵਾਸ ਰਿਟਨ ਬਾਏ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਦਾ 94th ਮੌਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਵਰਸ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਪਲੇਸ ਇਨ। मतलब कि ये चार नदियाँ शिफ्टिंग मतलब कि जो नदी का रूट होंगे कर लेंदी है ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ अगर ये एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ नदी बह रही ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ? ਗੰਡਕ ਨਦੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਸੀ ਨਦੀ। ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਰ ਆਫ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਔਨ। ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸੈਪਰੇਟਸ ਯੂਰਪ ਫਰੋਮ ਅਫਰੀਕਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਸਫੋਰਸ, ਜਿਬਰਾਲਟਰ, ਡੋਵਰ ਜਾਂ ਬੈਰਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਜਿਬਰਾਲਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਮੈਥਡ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। GDP ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਥਡ, ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਸਟ ਮੈਥਡ, ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਵਾਸ ਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ? शेख अलाउद्दीन सफीर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख अहमद सरहंदी। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਫੋਰਥ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਾਸ ਹੈਲਡ ਇਨ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਰੇਨ ਆਫ ਵਿਚ। ਚੌਥੀ ਬੁੱਧੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨਿਸ਼ਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ। ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਇਆ? 4 ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ 4, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਰਲੀ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸਟੋਰਲ ਸੀਗੇ। ਅਰਲੀ ਵੈਦਿਕ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੈਸਟੋਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਓਨਲੀ। ਅਰਲੀਐਸਟ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਔਨ ਸਟੋਨ ਵਾਸ ਮੇਡ ਇਨ ਵਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਦ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਾਲੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਏ ਕਿੰਗ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ sent an ambassador to the kingdom of Rohan in 26 BC to which dynasty did he belong? ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਂਬੈਸੇਡਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ? ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਿਆ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਬੈਸੇਡਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵ। 1915 ਚ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹਦਾ? ਏ ਆਂਸਰ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਪਾਇਨੀਅਰ ਆਫ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ
ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਇਸਰੋਏ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਜੂਨ 1947। ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋਗੀ। ਵਿਦਡਰਾਵਲ ਆਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਮਲਗੇਟਡ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਦ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ मूवमेंट, acceptance of Gandhi ji's suggestion for inquiry into the police excesses, release of only those prisoners who were not charged against the violence। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਤਾਂ 4 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਵਿਚ what does the green shoots represent in? green shoot the word ਦਾ ਮਤਲਬ sign of growth of agriculture sector in growing, sign of economic recovery, sign of growth of agriculture, developed economy। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ the USSR assisted the building Bhilai steel plant, अपना पुराना ब्रिटिश ने बोकारो स्टील प्लांट स्टैब्लिश स्टेटमेंट है जी सही हैगी। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर 1 ओनली। नैक्सट चलते हैं, विच इंस्टीट्यूशन द इंडिया इन इंडिया मेक कैलकुलेशन ऑफ काम भारत के डिपार्टमेंट का। इसका सही आंसर है जी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नैक्सट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस क्वांटिफाई द ह्यूमिडिटी इन द हवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥਰਮੋਸਟੈਟ, ਪਾਇਰੋਮੀਟਰ, ਹਾਈਗਰੋਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹਾਈਗਰੋਮੀਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਫਲੋਟ ਔਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਲ ਉੱਤੇ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ, ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਇੰਟੀਜੀਅਸ ਐਂਟੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਿਸਾਈਲ ਇਜ਼। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਿਸਾਈਲ ਤ੍ਰਿਨੇਤਰ, ਸਕਸ਼ਮ ਜਾਂ ਰੁਦਰਮ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਜੀ ਰੁਦਰਮ। ਸਾਈਟ ਆਫ ਗੈਸੀਅਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਨ ਲੰਗਸ ਇਜ਼। ਇਹ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਟ੍ਰਾਈਕੁਲਿਸ, ਬ੍ਰੋਂਕੀਓਲਿਸ, ਪੁਲਮੋਨਰੀ ਵੀਨ, ਐਲਵੇਲੇ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਐਲਵੀਓਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਔਰੇਂਜ, ਬਲੂ ਐਂਡ ਰੈਡ, ਇੰਡੀਗੋ ਐਂਡ ਯੈਲੋ, ਯੈਲੋ ਐਂਡ ਵਾਇਲਟ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਲੂ ਐਂਡ ਰੈਡ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ, ਵਿਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਨ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ। ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਨ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? WHO, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आया, which state has become the first north eastern state in India to achieve 100% saturation of हर घर जल जीवन मिशन। मतलब कि अपन ने हरे वाले पानी है कितना अवेलेबल कराना है, यह जल शक्ति ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100% ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਇਹ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ? ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਮ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ, which is the authorized seller of electoral bonds in India। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? RBI, SBI, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ SBI। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਨੈਗ ਲੇਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੀਨ ਇਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਇਰਲੈਂਡ। तो आज के सैशन के कई इन्ना ही, मिलते हैं जी नैक्सट सैशन के। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए एक मौका बताया जाता है। आज
से स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के मॉक को। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या पूछा गया है, एक एक करके चेक करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू CD इज नोन एज। जो कॉपी करने का प्रोसेस होता है उसे क्या बोला जाता है? बर्निंग, कॉपिंग, स्टोरिंग या पेस्टिंग। तो जो कॉपी करने का तरीका होता है उसे क्या बोला जाता है? आपके पास बर्निंग यहाँ पे बोला जाता है। तो आंसर इज ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस बेस्ड ऑन द स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। अब वर्ड यहाँ पे देखा है, सबसे क्या होगा, फिर क्या हाई होगा। अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? CD, करेक्ट डिस्क आएगा। P, फिर आएगा आपके पास DVD मतलब R, फिर उसके बाद आएगा ब्लू रे डिस्क मतलब कि Q, PRQ जो कि था आपके पास D ऑप्शन, जो कि था D ऑप्शन में आपके पास। आंसर क्या बनेगा? D फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं। अ ग्रुप assess a digital technology and another group lack of access to it will cause disparity known as internet inequality, web inequality या फिर टेक्नोलॉजिकल इम्बैलेंस या फिर डिजिटल डिवाइड। तो इसका आंसर जो रहेगा डिजिटल डिवाइस, इसको यहाँ पे हम लोग नाम है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जावा इज विच इज यूज्ड इन कंप्यूटर। जावा क्या है? कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपके पास क्या आएगा? इज अ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, आपके पास देखते हैं। विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक्सेल, ऑफिस वर्ड, ब्रोक्सी तो होता नहीं, प्रॉक्सी होता है। वैसे आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज आप लोगों को ये तभी वो काम हो पाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ OCR इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी इसे बोला जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी इसे बोला जाता है। तो आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करता हूं, अगला क्या है? दिस इज नॉट एनी क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो, मेन या फिर मेन फ्रेम। तो मेन आपके पास कोई नहीं होता है, सुपर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम मेन कोई कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट, ड्रोल, डेजीबिल या फिर डॉट। अगर मैं बात करता हूँ ड्रोल कोई प्रिंटर नहीं होता, बाकी तो सारे के सारे होते। नेक्स्ट देखते हैं आगे आपके पास क्या है। पेन ड्राइव यूज इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, सेंट्रलाइज डिवाइसेस, आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस या फिर पेन ड्राइव का मीन एक तरीके का स्टोरेज है। ठीक है ना, तो आंसर इज सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको आंसर क्लियर है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए कुछ नया आता है, तो मैं आशीष आज आपका स्वागत करता हूं और इस मॉक टेस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके पास। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड। इन्फ्लुएंजा वायरस, रिंगवॉर्म। इन्फ्लुएंजा जो है एक तरीके का वायरस होता है, रिंगवॉर्म क्या होता है? एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, फंगाई होता है। फंगाई होता है, तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, नॉट बैक्टीरिया, इज ए फंगाई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास LSFW का कोड है NTHX। ठीक है, इसमें कोड चेक कर लेते हैं बेटा क्या है। 12, 19, 6 और 23। ठीक है, 14 और आपके पास 20, 8 और यहाँ पे 24। देखो 12 से 14 प्लस 2 हुए, 19 से 20 प्लस 1 हुआ, 6 से 8 प्लस हुआ, 23 से 24 प्लस। तो अब यहाँ पे पहले P का कोड होता है 16, 2 ऐड करोगे तो 18 ही आएगा, पक्की बात है। 11 में 1 ऐड करोगे तो 12 ही आएगा, 12 पे L ही आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आउट हो गया। 23 था तो 25 आएगा, तो Y आएगा, ये भी सही है। अब 5 था तो 6 आएगा, F आएगा। ठीक है ना, RLYF, तो आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर 11 की अगर बात करते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं आता है 100। अगर 121 में से 1 माइनस कर देते है 100। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 13 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है? 169। और 169 में से 1 माइनस कर देते हैं 1। ठीक है, 168 इज द बी ऑप्शन, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चिकन जो है हैन। तो अगर बात करता हूँ चिकन क्या है? मेल है, और हैन क्या है? फीमेल है। तो ओट्स मेयर इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि ये भी क्या है? मेल, और ये भी क्या है? फीमेल है। ठीक है, जेंडर में था ये क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। BAPG
DNRJ। ठीक है, अगर बात यहाँ पे करता हूँ, आप लोग देखेंगे 2 है, 4 है, 11 है, 14 है, 16 है, 18 है, तो 7 है और आपके पास 10 है। 2 से 4 प्लस 2, 11 से 14 प्लस 3, आपके पास प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये लॉजिक प्लस 2 प्लस 3 का आपके पास चल रहा है। अगर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, 3 में 2 ऐड करते हो तो 5 5 पे आता है, ई ऑप्शन कैंसिल। आगे अगर बात करते हैं प्लस 3, 13 में 3 करते हैं 16, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बी ऑप्शन आंसर आ गया। डायरेक्ट आप लोगों ने बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट बात करते हैं 256। अगर मैं 256 बात करता हूँ तो 16 का स्क्वायर होता है, ये 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर बात करता हूँ 16 में प्लस ऐड कर दूँ कितना बन जाएगा आपके पास 17, 17 का अगर स्क्वायर कर दूँ तो आपके पास क्या बनेगा 289, 289 है। ठीक है ना, तो 289 में मैं प्लस 1 कर दूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 200 से। तो अगर बात करता हूँ तो ये कितने का स्क्वायर होता है 961, 96 है 31 है। ठीक है, तो 31 का स्क्वायर जो है आपके पास करेंगे तो कितना आएगा, एक ऐड कर देंगे इसमें हम, इसमें क्या करेंगे प्लस ऑफ एक ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 32। 32 का स्क्वायर होता है 1024, 1024 में प्लस ऑफ एक ऐड कर दोगे तो 1025, 1025 इज द सी ऑप्शन, इज द सी ऑप्शन। लीव्स रस्टल। अब रस्टल का मीनिंग क्या? रस्टल का मीनिंग है जब पत्ते जब तेज हवा चलती है तो पत्तों की जो आवाज आती है उसे क्या बोला जाता है रस्टल। रेन, जंगल, ट्रीज, सीजल, क्लाउड, थंडर। तो एक्चुअल में जो क्लाउड आपके पास गरजते हैं तो उसे थंडर बोला जाता है। ठीक है ना, तो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास RBLPSWMQ। अब देखो 18 है यहाँ पे, 19 आ गया, प्लस 1 22 है यहाँ पे आ गया, प्लस 1 12 है, प्लस 13 आ गया, प्लस 16 है आपके पास आ गया आपके पास प्लस 1। तो अब जी के बाद क्या आएगा, एच ही आएगा, एल के बाद क्या आएगा, एम ही आएगा, और के 11 के बाद एल ही आएगा, और पी के बाद क्यू ही आएगा। तो सी ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन आंसर यहाँ पे बन रहा। अब देखते हैं आगे है 3। अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो 3 का क्यूब करते हो आपके पास प्लस 3 ऐड करते हो तो कितना, 7 की अगर बात करता हूँ तो 7 का क्यूब कितना है 348, प्लस 7 कर 350, 350। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 350। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास FEH जे जे जे। देखो 5 था 10 आ गया, 5 ऐड हुए, 6 था 10 आ गया, 10 ऑफ 4 ऐड हुए, आपके पास 7 था और आपके पास 10 आ गया, प्लस ऑफ 3 ऐड हुए, आपके पास 8 था 10 आ गया, प्लस ऑफ 2 ऐड हुए। तो इस तरीके से था। अगर ए में 5 ऐड करते हो तो क्या आएगा, एफ ही आएगा, ये तो पक्की बात है, तो इन दोनों में से आएगा। डी में अगर 4 ऐड करते हो, 4 4 8, यही आंसर आएगा बी, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ आपके पास, सेलेक्ट द फॉलोइंग मैथमेटिशियन। रामानुजन, रामानुजन जो थे वो क्या थे, एक मैथमेटिशियन। तो सुशरत क्या थे आपके पास, साइंटिस्ट, आर्किटेक्चर, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर। इसका आंसर है आपके पास ये क्या थे, सी ऑप्शन, ठीक है, फिजिशियन, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं MEPOARZM। देखो 13 है, 20 है, 2 है और 15 है, आपके पास 11 है, 18 है, 26 है और 13 है। तो 13 से 11 पे अगर गए हो माइनस ऑफ 2 हुआ है, 20 से 18 पे आए हो माइनस 2 हुआ है, माइनस ऑफ 2 हुआ है, 15 से 13 पे माइनस। तो अब आर से अगर 2 कम करोगे 14 आएगा, 14 पे 18 से 2 कम करोगे 16 आएगा, ये तो कैंसिल। ठीक है, 10 से 2 कम करोगे 8 आएगा, ये भी बात है, तो ये 8 ठीक है। अब 13 से 2 कम करोगे 11 आएगा, ये भी कैंसिल। अब 4 से 2 कम करोगे तो 2 आएगा, ए ऑप्शन आप, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं 108 जो है वो कितने के बराबर, 1164 664। 108 का स्क्वायर होता है, अगर 112 का स्क्वायर अगर आप लोग करते हैं तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 12544, इसका आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ आएगा, ये क्या था, स्क्वायर था। ठीक है जी, चलिए, तो होपफुली फिर यहाँ तक सारी की सारी बातें क्लियर हुई हो।
बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का पार्ट के पार्ट का सॉल्यूशन, और मॉक नंबर है आपका 94। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बोट टेक 90 मिनट्स लेस टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 10। मतलब एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, एक्स की वैल्यू क्या है 10, एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है आपका x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम क्या होगा x माइनस वाई। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगा होगा, तो 36 किलोमीटर ये हो जाएगा आपका 10 माइनस वाई माइनस 36 से डिवाइड बाय 10 प्लस वाई और 90 डिवाइड बाय 60। देखो ये कितना हो जाएगा 3/2। अगर मैं यहां से सॉल्व करूं 3 से इसको डिवाइड करूं तो ये इसको भी 12 पे डिवाइड करेगा और इसको भी। तो देखो 12 डिवाइड बाय 10 माइनस वाई माइनस 12 डिवाइड बाय 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। अब ऐसे क्वेश्चनों में या तो एलसीएम लेकर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ या ऑप्शन से देखो। ऑप्शन से देखते ही साफ साफ नजर आ रहा है। देखो ये 14 हो जाएगा, इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा नहीं, ठीक है। 3 में 13 भी नहीं करेगा, तो 2 ही आपका एक ऑप्शन बच रहा था। तो 12 डिवाइड बाय 8 माइनस 12 डिवाइड बाय 12, ये कितना है 1, ये कितना है 1.5। तो 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 ही तो होगा, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन एग्जाम आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स 65% बॉयज एंड 80% गर्ल्स आर पास्ड। बॉयज का 65% पास हुआ है, गर्ल्स का 80% पास हुआ है। इफ द टोटल पास परसेंटेज वो 75, अगर टोटल 75% पास हुए हैं, हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर्ड इन द एग्जाम एंड हाउ मेनी गर्ल्स फेल। तो गर्ल्स एग्जाम में कितने गर्ल्स बैठे थे और उसमें से पास कितने हुए हैं, सॉरी फेल कितने हुए हैं। एलिगेशन लगाओ सबसे पहले तो 80 माइनस 75 5 हो जाएगा, 75 माइनस 65 10, तो मतलब 1 और 2 के रेशो में, 1 और 2 के रेशो में टोटल कितना हो गया 3, और 3 किसके इक्वल है 1800 के इक्वल है, तो 1600 के इक्वल। तो गर्ल्स कितने थे 2, तो 1200 गर्ल्स होंगे। तो चलो ऑप्शन बी, क्योंकि 1200 एक ही ऑप्शन में है तो फेल कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है अपने को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 42। तो इसका मतलब है कि वेडनेसडे को भी 42 है, थर्सडे को भी 42 है और फ्राइडे को भी 42, एवरेज ये कहना चाह रहा है, ठीक है। एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑन थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे वाज 43, मतलब ये भी 43 मानकर चलो, ये भी 43 और ये भी 43, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑन सैटरडे वाज 44 डिग्री, बट एक्चुअल में जो है वो यहाँ कितना है 44 है। वट वॉज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। देखो अक्सर इस क्वेश्चनों में आपको बताया जाता है कि 42 इंटू 3 करो, ठीक है, फिर यहां से 43 इंटू 3, फिर उसमें से आप 44 माइनस करो, फिर इनका डिफरेंस लेते हुए, ऐसा कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चनों में। देखो अगर मैं थर्सडे और फ्राइडे की बात करूं, थर्सडे और फ्राइडे यहां भी था और यहां भी था, ठीक है। देखो 42 प्लस 42, 43 प्लस 43, मतलब यहां कितना इंक्रीज हो रहा है 2 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सैटरडे को यहाँ 43 था, यहाँ 44 हुआ, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ मतलब सिर्फ +1 का डिफरेंस रहेगा आपका। तो 42 में से इस 1 को माइनस कर दो अब, क्योंकि ये उसके हिसाब से कम होने वाला है, तो 41 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, सोल्व कर लो, आंसर तब भी यही आना है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 85 नेचुरल नंबर। देखो 1 2 3 4 अप टू 85, तो कॉन्जिक्यूटिव अगर नेचुरल नंबर है तो आपको जो एवरेज निकालना है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर दो सर। तो 86 से डिवाइड बाय 2, तो 43 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। ऑन ए रोड 3 कॉन्जिक्यूटिव ट्रैफिक लाइट्स चेंज आफ्टर 40 48 एंड 56। देखो जब भी अगर ऐसा ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन हो तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एलसीएम लेते हैं, ठीक है।
अगर इनका एलसीएम की बात करें, देखो वैसे तो लग रहा है कि बड़ा नंबर है तो एलसीएम लेने में टाइम लगेगा, बट इन सबका एक कॉमन मल्टीपल है एचसीएफ। ठीक है, देखो इनका एचसीएफ कितना होगा, 8 होगा, तो ये कितना है 8 इंटू 5, ये कितना है 8 इंटू 6, और ये कितना है 8 इंटू 7। तो अब जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, 8 इंटू 7 56, 5 इंटू 6 30। तो 1680 डिवाइड बाय 60 अगर करें इसको आवर्स में चेंज करने के लिए, तो पहले 2 पे डिवाइड करेगा और फिर 8 पे, 28 मिनट। तो 10 बजकर पहली बार था, तो दोबारा 10 बजकर 28 मिनट पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 40, 60 एंड 75 लीव्स द रिमाइंडर 31, 51, 66। देखो इनके बीच का डिफरेंस देखो, हमेशा इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 9 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 9। तो जो डिफरेंस था सबसे पहले तो ऐड कर दो। ठीक है, देखो अब अगर ऐड करेंगे तो ये 10145 हो जाएगा फर्स्ट नंबर, 10111 हो जाएगा, 10200 हो जाएगा, 10120, ये 4 नंबर एग्जैक्ट बनेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से, मुझे 75 से नंबर डिवाइड करना है। पहली बात तो 40 और 60 से ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो सकते आपके, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, 75 से यही नंबर डिवाइड होगा, लास्ट में 00 है, क्योंकि 75 को आप 25 इंटू 3 करो, 25 इसको डिवाइड करेगा, 3 पहले वाले को डिवाइड कर देगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स टेक 4 days टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क। एक्स 1/3 वर्क कर रहा है 4 days में, तो कंप्लीट कितने में करेगा, 12 days में करेगा। एंड वाई टेक 1/6 ऑफ द वर्क इन 3 days, तो 6 इंटू 3 ये कितने में करेगा, 18 में करेगा। एंड जेड टेक 5 days टू कंप्लीट हाफ वर्क 5 days में करता है, तो कंप्लीट कितने में करेगा, 10 में करेगा। इन सब का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इन सब का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी होगी, 15, वाई की 10 और जेड की हो जाएगी आपकी 18। ठीक है, तो 25 प्लस 18, तो टोटल एफिशिएंसी क्या होगी, 43 होगी। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 3 days, तो 43 के एफिशिएंसी से 3 days वर्क किया, मतलब 129 वर्क कर दिया है आउट ऑफ 180। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, रिमेनिंग वर्क कितना है आपका, 51। एंड एक्स एंड जेड क्विट, उसके बाद एक्स और जेड ने क्या कर दिया, क्विट कर दिया है, तो सिर्फ एक्स और जेड ने कर दिया, तो वाई काम करेगा, और वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 10। तो 51 डिवाइड बाय 10, तो 51/10 days, ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, एन एम्प्लॉयर पेज 15 फॉर ईच डे ए वर्कर वर्क्स एंड फॉरफिट्स ₹5। देखो जितने दिन काम कर रहा है उसके 15 रुपए दे रहा है, और जो नहीं कर रहा है उसके 5 रुपए काट रहा है। तो 40 days के लिए उसने किया, तो अगर हम मान लेते हैं कि x days के लिए उसने काम किया था, तो काम करने के लिए नाम के उसको 5 रुपए मिले। ठीक है, और जिस दिन काम नहीं कर रहा था उसके 5 रुपए कट गए, टोटल में से 5 रुपए कट जाएंगे। ठीक है, और इस हिसाब से उसने टोटल कितना पैसा कमाया, 160 रुपए। ठीक है, तो 15x माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 160, तो 20x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 18। मतलब 18 दिन उसने काम किया था, तो 22 दिन ऐसे थे जब उसने काम नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4:1। ठीक है, एक रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ का रेशियो कितना है, 4:1। ये 4x है, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इफ ए मैन साइक्लिस्ट अलोंग विद द बाउंड्री पार्क एट द स्पीड ऑफ 15 km/h कंप्लीट्स 1 राउंड इन 10 minutes, तो मतलब 15 km/h की स्पीड से उसने 10 मिनट में, मतलब डिवाइड बाय 60 कर देते हैं हम। ठीक है, तो 15/6 मतलब 5/2, तो 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, तो मतलब 2500 मीटर। ठीक है, टोटल ये डिस्टेंस आपका कितना है, 2500 मीटर है।
तो ये भी, तो ये कितना है 4x और ये कितना है 4x, ठीक है, ये सॉरी x हो जाएगा, सामने x तो 10x, तो 10x डिस्टेंस किसके इक्वल है 2500 मीटर के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 250 मीटर। तो उसने लेंथ पूछी थी आपसे तो 1000 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड एरर 3% इज इन एक्सेस, मतलब ज्यादा आया है, इज मेड व्हाइल मेजरिंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर। अगर मान लो पहले 100 लिया था तो अब कितना ले लिया 103 ले लिया, तो उसके एरिया में कितना चेंज होगा, इसका एरिया कितना होगा, देखो 10 का स्क्वायर, सॉरी 100 का स्क्वायर 10,000, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10609 होता है, तो मतलब 609 का आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में 10,000 के रिस्पेक्ट में, तो 20 से 20 कैंसिल, तो 6.09, ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट, ए प्रॉफिट ऑफ 30% इज मेड on goods when a discount of 20% is given on the mark price, but profit percent be made when a discount of 30% is given. Cost price और market price, cost price होता है 100 माइनस डिस्काउंट और market price होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट, कितना होगा 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, 30% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का डिस्काउंट दिया है, मतलब 80 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि मैं अगर डिस्काउंट 30% का दूं तो इसका जो 30% होगा वो कितना होगा 39, तो 130 के ऊपर 39 का डिस्काउंट, मतलब 91 की वो सेल करने की बात कर रहा है, ठीक है, 91 में सेल करने की बात कर रहा है। तो अब जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा 11 का 80 के ऊपर इंटू 100, तो 4/5, तो 55/4 मतलब 13 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट बाय 20%, ठीक है, 20% ज्यादा करता है, इफ ही इंक्रीज द डिस्काउंट फ्रॉम 5 to 10% द प्रॉफिट वुड डिक्रीज बाय 21 रुपीज। अगर 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, 100 रुपए की चीज थी, तो वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो 20% ज्यादा मार्कअप करता है, ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर वो 20% मार्कअप ज्यादा करेगा तो कितना करेगा 120 का। पहले वो क्या कर रहा है कि 5% का डिस्काउंट दे रहा है और फिर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, अगर 5% का डिस्काउंट देगा तो मतलब इसके ऊपर कितने का 6 का डिस्काउंट देगा, तो वो 114 में सेल करने की बात कर रहा है, यहां से वो 108 में सेल करने की बात कर रहा था क्योंकि 12 का डिस्काउंट देगा, तो दोनों में डिफरेंस कितने का 6 का है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21, 1/6 200 कैलकुलेट करो, 3 से डिवाइड करेंगे 2 और 7 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 350 रुपए का आर्टिकल, 350 रुपए का आर्टिकल। हाउ मच प्रॉफिट और लेस ही वुड बी अर्न इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। देखो अगर मैं पहले तो इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे, इसको मार्कअप ज्यादा करता हूं, तो मतलब 70 का मैं मार्कअप ज्यादा करूंगा, ठीक है, अब मैं अगर इसके ऊपर डिस्काउंट देगा, देखो मैंने 20% मार्कअप कितना ज्यादा किया था 70, इसके ऊपर अगर मैं 20% डिस्काउंट दूंगा तो डिस्काउंट कितने का दूंगा 84 का, तो देखो 70 रुपए बढ़ाए थे, 84 का मुझे डिस्काउंट देना पड़ा, मतलब 14 रुपए का मुझे क्या हो गया लॉस हो गया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप ये सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे आप लोगों को। अगर किसी भी बच्चे का किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, कंफ्यूजन है, तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको जरूर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। Hello everybody, welcome to the mock number 94 of it. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. There we present the English section. Select the choice that is an error. आपको error निकालना, अगर error नहीं है तो D no error. My friend told me that he will visit yesterday but he did not. Yesterday लगा है, past से start हुआ, will का would हो जाएगा। अगला देखिए, the members casted their vote. Casted कोई वर्ड नहीं होता, इट इज कॉल्ड कास्ट देयर वोट्स। द चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन एंड ईच ऑफ देम वाज गिवन अ प्राइज। द चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड और सबको प्राइज मिला था, इट शुड बी एवरी वन ऑफ देम वाज गिवन अ प्राइज। द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी डिस्कस्ड के साथ अबाउट नहीं आता, यू शुड ओमिट दिस एज वेल, ये आ गया। ही प्रेफर्स, आपको प्रेपोजिशन यूज करना है, इट इज प्रेफर के साथ टू लगता है। He prefers coffee to tea.
I am fond of music. Wealth acquired through dishonorable means lead to moral downfall. इसका आपको बताना है नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द बोल्ड पार्ट. तो डिसऑनरेबल का नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? डिसक्रेडिटेबल, विच मीन्स wealth acquired through discreditable means. What meaning have you drawn from her tongue in a cheek remarks? Drawn का मतलब क्या होता है? आपने क्या डिड्यूस किया मीनिंग, तो क्या निकाला? A. One word substitution आ रहा है. One who is unrelenting and cannot be moved by entreaty is called inexorable. An associate in an office or institution, companion, ally, colleague or employees. ये आपको पता ही है, colleague बोला जाता है जो पर्सन हमारे साथ काम करता है. या आपको सिनोनिम ढूंढना है, मतलब कि सेम मीनिंग ढूंढना है. यहां पर वर्ड है इंडिगेंस, उसका सेम मीनिंग हो जाएगा पॉवर्टी, जिसको जरूरत हो, के पास कम हो. करेक्ट सेंटेंस निकालना है. इफ आई मेट हरीश, मेट के साथ विल का कोई काम नहीं है, मेट के साथ वुड चलेगा, मेट के साथ हैव नहीं, मेट के साथ हैड नहीं. आंसर इज द बॉय. थैंक यू.